ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کی صدارت میں دہلی میں ایک اہم اجلاس، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ و دیگر کی شرکت۔ بھارت اور پاکستان نے سرحدی کشیدگی کم کرنے کے لیے جنگ بندی پر کر لیا اتفاق۔ حیدرآباد کے معروف اسپتال میں کام کرنے والی ایک 34 سالہ لیڈی ڈاکٹر منشیات خریدتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ پاکستانی گولہ باری میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے ایگزیکیوشن دینے کا جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا اعلان۔ تلنگانہ کے کریم نگر میں اینٹی کرپشن بیورو نے آپاشی کے ایگزیکٹو انجینئر امریندر ریڈی کو رشوت کے الزام میں کر لیا گرفتار۔ تلبیہ کی گونج میں بھینسہ سے 35 عازمین حجاج کا قافلہ حج کی سعادت کے لیے ہوا روانہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں دہلی میں ایک اہم سیکیورٹی اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ یہ اجلاس بھارت کے پاکستان پر فضائی حملوں کے بعد طلب کیا گیا تھا، جن کا مقصد پاکستان کی جانب سے بھارت پر کیے گئے حملوں کا جواب دینا تھا، جبکہ وزیر خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے پریس کانفرنس میں پاکستان کے اقدامات کو اشتعال انگیز اور کشیدگی بڑھانے والا قرار دیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں پھیلائی گئی جھوٹ کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی جارحیت اور ڈرونز کے ذریعے فضائی دراندازی کی بھی تفصیلات پیش کی۔ پاکستان نے کشمیر کے سرحدی علاقوں میں اسپتالوں اور اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ادھم پور، پٹھان کوٹ اور دیگر علاقوں میں بھارتی فضائی اڈوں پر پاکستان نے ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کی کوشش کی، جسے ہندوستانی فوج نے ناکام بنا دیا۔ پاکستان نے لاہور سے روانہ ہونے والے شہری طیارے کی آڑ میں بین الاقوامی فضائی راستے کا غلط استعمال بھی کیا، تاکہ اپنی فوجی سرگرمیاں چھپائی جا سکے۔ کرنل صوفیہ قریشی نے کہا کہ جواب میں بھارتی افواج نے مرید رحیم یار خان اور دیگر پاکستانی فوجی اڈوں پر ہوائی حملے کیے۔ بھارت نے صرف مخصوص فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور شہری نقصان سے بچاؤ کو ترجیح دی، جبکہ پاکستان کے جھوٹے پروپیگنڈے جیسے سرسا اور سورت گڑھ ایئر بس کی تباہی کو بھارت نے سختی سے مسترد کر دیا۔ پاکستان سینا نے پوری پشچم مورچے پر لگاتار آکرمک گتیویدیاں جاری رکھی۔ اس میں یو-کیپ ڈرونز، لانگ رینج ویپنز، لوٹرنگ منیشنز اور لڑاکو ومانوں کا اپیوگ کر بھارتی سینیہ ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ نینترن ریکھا پر بھی ڈرون گھسپیٹ اور بھاری کیلیبر ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔ انترراشٹری سیما اور LOC پر شری نگر سے نلیا تک 26 سے ادھک استھانوں پر ہوائی گھسپیٹ کے پریاس کیے گئے۔ بھارتی سشستر بلوں نے ادھکانش خطروں کو سفلتا پوروک نشکریہ کیا، پھر بھی وایو سینا اسٹیشنوں پر ادھم پور، پٹھان کوٹ، آدم پور اور بھوج بٹھنڈا اسٹیشن، ان سب پر اپکرن و پرسنلز کو ہانی پہنچائی۔ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے ہائی سپیڈ میزائل صبح 1:40 پر استعمال کر کے پنجاب کے ایئر بیس اسٹیشن کو داغنے کی کوشش کی۔ ایک نندنیہ اور ان پروفیشنل ایکٹ کے تحت پاکستان نے شری نگر، اونتی پور اور ادھم پور کے وایو سینا اڈوں پر چکتسا کیندر اور اسکول پریسر کو نشانہ بھی بنایا، جس سے اس کے دوارا سول انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے کی غیر ذمہ دارانہ پروتی پھر اجاگر ہوئی۔ پاکستان دوارا سینیہ ٹھکانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے پشچات بھارتی سشستر بلوں نے تورت و سنیوجت جوابی حملے کیے۔ ٹیکنیکل انسٹالیشنز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، رڈار سائٹس اور ہتھیار بھنڈار کو چن کر نشانہ بنایا گیا۔ رفیقی، مرید، چکلالہ، رحیم یار خان، سکور اور چنیا استھت پاک سینیہ ٹھکانوں پر ایئر لانچڈ سٹیک ہتھیاروں و لڑاکو جیٹ سے پرہار کیے گئے۔ پسرور استھت رڈار سائٹ اور سیالکوٹ کا ایویشن بیس بھی پریسیجن ایمونیشن سے ٹارگٹ کیے گئے۔ ان کارروائیوں کے دوران بھارت نے کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج کی
क्षति सुनिश्चित की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद दर शमसुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान की हालिया जारिहत और मासूम शहरियों पर हमले पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने कभी मासूमों और बच्चों के कत्ल की तालीम नहीं दी और जो मुल्क ऐसा करेगा उसे इस्लाम का नाम लेने का कोई हक़ नहीं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो भारतीय जवानों की मुकम्मल हिमायत करें। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि पाकिस्तान बार बार भारत को ललकारता है और अगर उसने हमला किया तो भारत पीछे नहीं हटेगा। हैदराबाद में सहाफ़ियों के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम माँ के पेट से इस वतन में पैदा हुए और इसी वतन की ज़मीन में दफन होंगे। सदर मजलिस ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि ये वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद होने का है। उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत खुसूसन कांग्रेस और बीजेपी से अपील की है कि वो अपने सियासी अख्तलाफात को एक तरफ रख के मुल्क की सालिमियत और सिक्योरिटी के लिए एक सफ़ में खड़े हो। हमारी दोनों नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी तूतू में बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूँ या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी टू नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफियों के दरमियान में बोलने का फायदा ही है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से दूसरों तक पहुंच सकती है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पटाखे फोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस कमिश्नर CV आनंद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम अवामी मुकामात खुसूसन फ़ौजी इलाक़ों और कंटेनमेंट जोन के अतराफ़ आतिशबाजी करना सख्त ममनू है। पुलिस ने खबरदार किया कि पटाखों की आवाज़ को दहशतगर्दी या धमाके का शुबा समझा जाता है, जो खौफ व वायरस और अफवाहों का बायस बन सकती है। अवाम से अपील की गई है कि वो अमन अमान की खातिर आतिशबाजी से गुरेज करें, बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की गोलाबारी में जाँ बाग होने वालों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए एक ज़िगरेशा का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में पूंछ, राजौरी, जम्मू और बारामूला सेक्टर में हमलों के नतीजे में एक अफसर समेत 19 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि कोई भी रकम इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं हो सकती, लेकिन ये मदद एक जहदी का इजहार है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है और इनकी मुश्किलात कम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के रिहारी और रूपनगर इलाक़ों का दौरा किया और शेलिंग से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी रिहायशियों से मुलाकात की और मुतासरा इलाक़ों का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने आवाम को दरपेश तकालीफ और मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए फ़ौरी और मुकम्मल इमदाद फराहम करेगी। चौधरी साहब तो की है बड़ी पूरी राह चलते रहना चाहिए। महाराष्ट्र के सिपाही मनोज पायल को शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही सरहद पर वापस बुला लिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस इन्हें फौरी तौर पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। हालांकि वो अभी शादी की छुट्टियों पर थे। मनोज की शादी 5 मई को हुई थी। इनकी अहलिया ने अश्कबार आंखों से रुखसत करते हुए कहा, मैं अपना सिंदूर मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर भेज रही हूँ। मनोज की अचानक रवानगी पर इनके अहले खाना भी जज्बाती हो गए और मुल्क की खिदमत पर फ़ख्र का इजहार किया।
बचवड़ंदानो तेलंगाना के करीमनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के हुकाम ने आपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमरिंदर रेड्डी को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अमरिंदर रेड्डी ने सिरसल्ला ज़िले में एक कॉन्ट्रैक्टर से 50 लाख रुपए की बिल की मंजूरी के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था और बाद में 75,000 रुपये पर राज़ी हो गया था। कॉन्ट्रैक्टर ने इस सिलसिले में एसीबी से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसके घर से गिरफ्तार किया गया। अमरिंदर रेड्डी ने 60,000 रुपये रिश्वत की रकम वसूल की और इसे अपने बेटे की टी शर्ट में लपेटकर घर के पीछे फेंक दिया, मगर एसीबी ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से रकम बरामद कर ली और इसे हिरासत में ले लिया। बीआरएस के एमएलसी के कविता ने तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त की है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस मिस वर्ल्ड प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया जाए, यानी मुलतवी करें। उन्होंने कहा, मिस वर्ल्ड एक मशहूर प्रोग्राम है, लेकिन इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर तनाव है और हमारी फ़ौज दुश्मन का मुकाबला कर रही है, ऐसे वक्त में तफरीही प्रोग्राम करना ठीक नहीं लगता। मैं हुकूमत से कहती हूँ कि इस प्रोग्राम की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आईपीएल को मुलतवी किया गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान मुल्क की दिफाई अफवाज की हिमायत करते हुए कहा कि हमें अपने सिपाहियों की कुर्बानियों का अंदाज़ा नहीं है कि वो हमें कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें उस मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा होना है जो दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी फ़ौज के साथ मजबूती से खड़ा होना है। तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए, तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, उनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तूतू में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे हैं, कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए, वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू एमएलसी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं, वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फुला थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहे और फौज बेबाकी से मुकाबला करे, और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। हैदराबाद के एक मारूफ अस्पताल में काम करने वाली 34 साल लेडी डॉक्टर
नर्मिता को राय दुर्गम पुलिस ने मंशियात खरीदते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नम्रता कुछ अरसे से मंशियात की आदी हो चुकी थी और इसने व्हाट्सएप के ज़रिए मुंबई के वंश से 5 लाख रुपए की मालियत की कोकीन को ऑर्डर दिया, जिसकी अदायगी ऑनलाइन की गई थी। कोकीन की तरसील के लिए वंश अपना डिलीवरी बॉय बालकृष्णा को भेजा, जिसे पुलिस ने नम्रता के साथ मौके पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से 53 ग्राम कोकीन, 10,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ है कि नम्रता अब तक मंशियात पर 70 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। నిన్న తేదీన ఒక నమ్రత అని చెప్పి ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ లేడీ, తనకు తెలిసినటువంటి వంశ్ అనే ఒక వ్యక్తి ముంబైలో కొంత డ్రగ్ ఆర్డర్ చేస్తుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి సప్లై ఇవ్వడం కోసం ఒక బాలకృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చి రాయదుర్గం ఏరియాలో ఆ లేడీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటే పోలీస్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేసి పట్టుకొని వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక 10,000 రూపీస్ క్యాష్, 53 గ్రామ్స్ కోకైన్, 2 సెల్ ఫోన్లు రికవర్ చేసేసి వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ నడుస్తున్నది. भैंसा से 35 आज़मीन हुज्जाज का काफ़िला तलबिया की गूंज में हज की सआदत के लिए रवाना हुआ है। इस ज़िमन में भैंसा के क़दीम व तारीख़ी दीनी दरसगाह दारुल उलूम जामिया अरबिया में मर्द व ख़वातीन आज़मीन हुज्जाज की तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जहाँ मौलाना हाफिज़ रफ़ीक़ुद्दीन, मौलाना शाहिद ग़ुफ़रान क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, ज़िले सदर जमीयतुल उलमा और दीगर उलमा व हफ़ाज़ के अलावा अहमद मोहिउद्दीन साबिक़ा काउंसलर, मोहम्मद सिराज अहमद साबिक़ा काउंसलर के अलावा हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान अब्दुल मजीद, अब्दुल क़दीर व दीगर शरीक थे। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ रफ़ीक़ुद्दीन, मौलाना शाहिद ग़ुफ़रान क़ासमी और मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी ने आज़मीन हुज्जाज के मुबारकबाद पेश किए। बादशाह एक और दीनी दरसगाह मदरसा माहिदुल अबरार खान आटो नगर में आज़मीन हुज्जाज के लिए दुआ करते हुए तलबिया की गूंज में आज़मीन हुज्जाज के काफ़िले की रवानगी हैदराबाद हज हाउस के लिए अमल में आई। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के फ़ौजी ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर तनकीद करते हुए कहा कि ये नाम कुरान की एक आयत से लिया गया है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मजबूत दीवार की तरह खड़े हों। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट झूठ पर कायम है और वो कुरान के असल पैगाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि जब पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर गोलियां चलाई जा रही थी तो उन्होंने कहा कि इसी आयत में अल्लाह फरमाता है कि वो बातें ना कहो जो तुम पर अमल नहीं करते, और यही पाकिस्तान की हकीकत है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज़ कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी, उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर
इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वही सूरत अस्साफ की आयत है, आप बोले सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम भारत और पाकिस्तान ने सरहदी कशीदगी कम करने के लिए जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसे माहिरीन खित्ते में अमन की जानिब मुस्बित कदम करार दे रहे हैं। दोनों ममालिक की सरहदों पर हालिया ड्रोन हमलों और फायरिंग के बाद हालात कशीदा थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस माहदे में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। भारत और पाकिस्तानी क़ियादत ने भी जंग बंदी की तस्दीक की, जिसमें दोनों ममालिक के वज़राए आज़म, वज़राए ख़ारजा, कौमी सलामती के मुशीर और फ़ौजी हुक्काम शामिल थे। भारतीय ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में जंग बंदी के निफाज की तस्दीक की। पाकिस्तानी DGMO ने आज दोपहर 3:35 पर भारतीय DGMO से रब्ता किया, जिसमें तय पाया कि दोनों जानिब ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी कार्रवाइयाँ आज शाम 5 बजे से रोक दी जाएंगी। दोनों मुल्कों में इस फैसले पर अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ख़ारजा सेक्रेटरी के मुताबिक DGMOs की अगली बातचीत 12 मई को दोपहर 12 बजे होगी। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में दिल्ली में एक अहम इजलास, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह व दीगर की शिरकत। भारत और पाकिस्तान ने सरहदी कशीदगी कम करने के लिए जंग बंदी पर कर लिया इत्तेफाक। हैदराबाद के मारूफ अस्पताल में काम करने वाली एक 34 साल लेडी डॉक्टर मंशियात खरीदते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पाकिस्तानी गोलाबारी में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए एग्ज़िक्रिया देने का जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया ऐलान। तेलंगाना के करीमनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमरिंदर रेड्डी को रिश्वत के इल्ज़ाम में कर लिया गिरफ्तार। तलबिया की गुंज में भैंसा से 35 आज़मीन हुज्जाज का काफिला हज की सआदत के लिए हुआ रवाना। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी।
ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएं। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।